Good morning, class 10th. To be continued your topic periodic classification. Today we will study the Newland's law of octaves. Before this, we have completed the first law, that was Governor traits. Now, Newland's law of octaves. न्यूलैंड का, that is also known as न्यूलैंड का अष्टक. Octave means अष्टक. Octave that is similar to the musical note. Musical note यानी क्या होता है? संगीत के अंदर क्या होते हैं? स्वर होते हैं, 8 स्वर होते हैं. न्यूलैंड ने उन म्यूजिकल नोट्स को लेकर के जो क्या दिया, लॉ दिया, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय J.A.R. Newland in 1866. In 1866, known as law of octaves. Law of octaves. According to him, when elements were arranged in order of their increasing relative atomic masses, the properties of every 8 element, were similar to the first one, like the 8 note of a musical scale. Sorry, no. So, according to Newland's law of octaves was based on the increasing atomic mass. This one is the Newland's table. He chose musical notes scale for placing the element together with each other, but they are based on increasing atomic mass. You can see just these are the musical notes: sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Means, according to Newland, the properties of 8 elements just similar to the properties of first element. Similarly, in the musical note, or also known as sargam, the 8 note just similar to the first. So this law was based on the note of the musical scale. That is Newland's law of octaves. न्यूलैंड ने क्या चूज किया था? म्यूजिकल नोट को, इस नियम को देते समय चूज किया था. एंड he put similar element together to each other. Hydrogen, fluorine, chlorine. There is a 2 table. In first slot we have the elements with atomic mass up to 40 and elements with atomic mass greater than 40. जिनका एटॉमिक मास 40 तक है उनको हमने यहाँ लिया है, और जिनका 40 से ज्यादा है उनको नीचे लिखा है. ठीक है.
तो अभी हम क्या देखेंगे, आज भी लिथियम सोडियम पोटेशियम एक साथ है, ये भी बोरॉन और एल्यूमिनियम भी, कार्बन सिलिकॉन भी, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, यहां तक ठीक है। बट जो कमी थी, जो लिमिटेशन थी न्यूलैंड की, वो उन्होंने खुद ही डाल दी अपनी टेबल के अंदर, उन्होंने न्यूलैंड ने खुद ही डाल दी। जैसे आपने यहाँ एक अलग ही क्या नजर आ रहा है, कोबाल्ट एंड निकेल बोथ आर इन सेम स्लॉट। तो व्हाट वाज द रीजन टू फेलियर दिस लॉ? नियम ठीक था, तो क्योंकि जो करेक्टर उन्होंने चूज किया, क्या क्या लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, and the second one is properties, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेकिन खुद ने ही गलती कर दी। तो नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। और when Newlands gave this law, only 56 elements was discovered. न्यूलैंड के समय में कितने एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट थे। और न्यूलैंड ने साथ में ये भी कहा था, नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर, यानी भविष्य के अंदर कोई भी नया एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए दीज आर द लिमिटेशंस, ये लिमिटेशन है कि न्यूलैंड के समय में केवल 56 एलिमेंट थे, उन्होंने 40 को अलग रखा और 40 को अलग रखा, लेकिन साथ में ये भी भविष्यवाणी की कि भविष्य के अंदर और कोई एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा। और आज हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 100 जी, क्लियर। तो लिमिटेशंस, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मीन्स ये जो नियम था, केवल कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट possess similar to that of first element, similar to that of first element. So another limitations of Newlands, that Newland assumed by Newland that 56 elements existed in nature and no more element would discovered in future. This one is the second limitations, and the third limitation is that Newlands put two elements together with each other in a same slot. Cobalt और निकेल, ठीक है, both are similar in the properties. उनको किसके साथ रख दिया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, all these are the gases. हम इनको कैसे पढ़ते हैं, they are known as halogens, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्या हेलोजेंस है। और उन्होंने अपने ही नियम को ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया कि उनका कहना था कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं उन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, साथ रखेंगे। पहली मिस्टेक कि दो एलिमेंट को क्या रख दिया, साथ रख दिया। कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, दोनों को साथ रख दिया, ठीक है। और मिस्टेक क्या की कि इनको हेलोजेंस के साथ, अब हम इनको हेलोजन के नाम से जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो दे आर रेफर्ड टू एज हेलोजेंस, हेलोजन के नाम से जानते हैं। तो एक लिमिटेशंस ये बनी। और दूसरा मिस्टेक क्या किया कि आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल के जैसी है, दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल थ्री आर द मेटल्स, whereas फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आर रेफर्ड टू एज नॉन मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज आयरन से मिलती हैं, तो कोबाल्ट और निकेल से ही आयरन को क्या कर दिया, दूर कर दिया।
this one is the another limitations of Newlands. Now, Mendeleev periodic table. वही तो मिस्टर कौन सा वाला दबा रहा है, फिर गलती कर रहा. Now, let's see Mendeleev periodic table. So, what is the meaning of periodic table? A periodic table may be defined as an arrangement or a chart which classified all the known elements, on the basis of their properties in such a way that the elements with similar properties are placed in the same vertical column and dissimilar elements are separated from one another, and dissimilar elements are separated from one another. And this is the another classification which was given by Mendeleev. Mendeleev, a Russian chemist. Mendeleev कौन थे? एक रशियन केमिस्ट थे. Mendeleev, from next line. Mendeleev, a Russian chemist, arranged elements on the basis of their fundamental property. Fundamental property, the atomic mass. And the similarity of chemical properties. तो at the time of Mendeleev के समय में there are 63 elements are existed in nature. 63 elements क्या थे? Find out the Mendeleev ने टेबल दी थी. And this table was based on the increasing atomic mass, and Mendeleev chose the properties, physical as well as similarly chemical properties to classify the elements. How hydrogen and oxygen reacts with another element. उन्होंने बेस क्या बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी उन्होंने लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे एलिमेंट से क्रिया करते हैं. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 63 एलिमेंट्स. जो टेबल आप देखेंगे मेंडलीव की, उसके अंदर क्या आएंगे? ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ मेंडलीव. बिफोर दिस he gave a law that is known as Mendeleev periodic law. According to Mendeleev, what was the law? According to Mendeleev, all the property of elements, the property of elements, property means physical and chemical property of the
elements are the periodic function of the physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. And according to the law, क्या कहते हैं इसको हिंदी में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. Properties means physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. Atomic mass का मतलब इसको हम कहते हैं परमाणु भार. आप याद रखेंगे एटॉमिक मास ही, ठीक है. और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है रिपीट होना, एक के बाद एक क्रम से. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती है, क्रम से रिपीट होती है. द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के गुण, ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस, उनके किसके, तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके, उनके परमाणु भारों के. ये मेंडलीव का लॉ था. मीन्स यहां पर भी आपको बेस क्या रखना है, एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को इन्होंने चूज किया था, ठीक है. अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें इसकी टेबल देखेंगे कि मेंडलीव ने कौन सा टेबल दिया था, ठीक है. इसलिए आप ये नियम को अच्छे से समझ लें, ध्यान रखें. प्रॉपर्टी का मतलब है, एक ही वर्ड में लिखा है, प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं. आवर्ती फलन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है. जैसे जब आप टेबल देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमने जो भी एलिमेंट लिया है, ठीक है, जो टेबल के अंदर इन्होंने जो भी, क्योंकि मेंडलीव ने टेबल को क्या किया, पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया. तो जब भी ये नेक्स्ट ग्रुप आएगा तो अगला एलिमेंट यहाँ आएगा, तो वही एलिमेंट क्या करेगा, लाइक करेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले एलिमेंट से क्या होंगी, रिजेंबल कर रही होगी. ओके, सो दैट वाज सफिशिएंट फॉर टुडे. वी विल मीट सून in another class. So have a nice day.